ये मतलब विंटर्स में वार्म हॉट चॉकलेट बेस्ट कॉम्बो है। ये ब्रेन बना रहे हैं, ब्रेन ये ब्रेन है। ब्रेन मसाला, गोट ब्रेन। आप कंटेंट फील करें तो आपको ऐसा करना चाहिए। हाँ, content and happy. एंड हैप्पी। जैसे आप बताइए हमें कैफे डी टवर्न क्या Cafe de Tavern. Yeah, so the first floor tavern has always been there. It is one of those legendary restaurants of Mussoorie, started in 1972, and it's been extremely popular with the boarding school kids studying in Mussoorie, the IS Academy, and the tourists who've been visiting Mussoorie. Then 2013, we acquired this place, and we thought that we should open a cafe. And this cafe was inaugurated by the legendary Mr. Ruskin Bond. He himself cut the ribbon, and this was inaugurated by him. And the good thing is about this menu is that it's a mix of everything. It's got some street food, it's got some Uttarakhandi food, and it's got some nice Western dishes as well. But each and every dish is named after either people of Mussoorie or touristy places of Mussoorie or schools of Mussoorie. So like, you know, any name that you can think of for Mussoorie, be it Landor, be it Kempty Fall, be it Mr. Bond, be it Mr. Ganser or Mr. Victor Banerjee, और मिस्टर सानी except my name, or Brentford, you know, every important landmark in Mussoorie or personality has got a dish named after them. And even inside, we've taken them onto the journey of Mussoorie. On the walls, we've got paintings of the landmark buildings of Mussoorie. There's a map of Mussoorie. So it's all about Mussoorie, and you're enhancing your experience in Mussoorie. At the same time, giving you probably the best food, at least in the hills of northern India. That we very proudly say that between Tavern and Cafe de Tavern, all our units, we easily serve the best food, at least in the hills of India. That's why I think we've survived more than 50 years. शुरुआत कर किससे की जाए? Sir, see, Ragi Pizza, रागी पिज्जा which, yeah, I'm sure you'd love. You saw it coming out of the oven, हाँ and it's wood fired. हाँ? ये तो आपका पुल अपार्ट, ये हमारा pull apart है. ये कोरियन डेलिकेसी है। It's a Korean delicacy. हाँ। आप इसको, you have to pull it apart and take the cheese with it. ये चीज़ पुल आना चाहिए। Straight out of the oven, and it's big, you know. अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ पुल आ गया। It's never ending। And now you'll relish the taste also. Yes. क्या बात। Yes, Smriti, you also pick up. Yeah. फुल ऑन गार्लिक का फ्लेवर है, हाँ? और सही से मतलब क्या जाए, टोस्टेड Yes, absolutely. ब्रेड। अब ये हमारा टिपिकल पहाड़ी बोल, ये भट की दाल है. भट की दाल, हाँ जी. ब्लैक Which is, सोयाबीन। yeah, which is very very famous here. तभी इसका नाम भटूनी बोल है. अच्छा, ये जो लाल भात है, रेड राइस, ये हमारे मसूरी के पास में एक चक्राता बेल्ट है, वहाँ से आता है. इट इज़ 100% ऑर्गेनिक एंड इट्स वेरी वेरी न्यूट्रिशियस. साथ में हमारा सिंपल ट्रेडिशनल आलू Sichwani. आलू सेचवानी। सिचवानी और हमारी रागी चिप्स ऊपर हाँ हाँ, और तिल की चटनी. क्या बात। So this is our complete Uttarakhandi bowl. So you can have all this with a nice cocktail. Our GT1 is something to really cherish and relish. अगर आप कहो तो मैं आपको पिलवाऊंगी. फीलिंग एक GT1 भेजना. This is the gin and tonic done our way. अच्छा, इसमें क्या क्या है? Take a sip and then tell me. मतलब खुशबू You're a connoisseur. सिट्रसी, टैंजरीन। Ah, there is orange rind in it. अच्छा, ये तो कह सकता हूँ कि जिनकी अच्छी खासी क्वांटिटी है इसमें। हाँ, नहीं, जिनके साथ इसमें हल्का सा टच कुछ और मिक्स हम किया। हम विंटर्स में थोड़ी सी ब्रांडी डाल देते हाँ, हैं. मगर कुछ है, मतलब समथिंग। So that enhances it. Hi, how are you, भैया? हेलो सर,
How do you do? सर आप कैसे हैं? I said we have the same color. Yes, ये लो. Please tell us about your place first. About my place, it's a very old establishment. My father started sometime in 1945. And it was just a general store. Selling bread, butter, jam and stuff like that. And then gradually, slowly diversified. Added few items, desserts and all. So, in a matter of time, every few years we do some changes. अब तो ये मतलब मसूरी की एक आइकॉनिक डेजर्ट प्लेस आप कह सकते हैं बन चुकी है. जो भी मसूरी आता है वो यहाँ विजिट जरूर करता है. Thank you. आपके यहाँ होता है ना स्टिकी जॉ. हाँ बिल्कुल. ये यहाँ की मतलब कहा जाए तो एक तरह से मसूरी देहरादून की ओरिजिनल हाँ टॉफी या. है. जो आपका बिल्कुल एकदम कहते हैं ना आर्टिसनल चॉकलेट्स. Yeah, you could call it that actually. अलग अलग शेप्स के अलग अलग साइज. हाँ फिर आमंड रॉक्स भी है ना. ये ट्राई कीजिएगा ना. ये बेस्ट है आजकल. ये ट्राई कीजिए. हेजलनट. तो आप चॉकलेट कहाँ से सोर्स करते हैं? Chocolate, we process our own actually. We get the ingredients from various places and we process our own. My wife went to Belgium to learn. So she is the one who's looking after the chocolate. Try this. Try the orange. Here. Amazing, na? Chocolate was actually a friend of my father from Goa. He was living here for some time. He would come here, perform in Savoy Hotel, सुना होगा आपने, हाँ, बिल्कुल. Ekmans वगैरह. So he was friends with my father. So I guess that's how the name Chick Chocolate came out to be. In fact, did I tell you that once they had traveled all the way to Calcutta, Chick Chocolate and my father, Okay. to play at Trinkas. You must have heard of Trinkas in Trinkas is Calcutta. still there. It's still there. Yeah, it's still there. So they both went to Calcutta to sing and play over there. तो आपको कितने साल हो गए हैं मसूरी में? मतलब Because I was born here. कौन है? तो कितना मसूरी कितना बदला है? अरे क्या बात कर रहे हैं? हाँ? या अब अच्छा है कि पहले अच्छा था? पहले अच्छा था. क्या चीज़ें हैं जो लगता है आपको पहले अच्छी थी? 60s, 70s, लोग कम थे. ट्रैफिक नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, एंड क्राउड वाज वेरी डिफरेंट. अब तो क्राउड काफ़ी चेंज हो गया. पहले जब लोग आते थे यहाँ पे छुट्टी पे, तो दे वुड कम विद अ न्यू वार्डरोब. द लेडीज वुड गो डाउन टू द salon for hairdo before they took a walk on the mall road. यहाँ पहले रिक्शाज हुआ करती थी, हैंड पुश्ड एंड हैंड ड्रॉन रिक्शाज. तो अपना मेकअप शेकअप हेयरडू करके दे यूज्ड टू राइड ऑन द रिक्शा ओनली बिकॉज द मॉल रोड. आई थिंक वो पूरा कॉलोनियल हैंगओवर नहीं था. हाँ, था ना? यू माइट से दैट. या फिर स्पेशली आफ्टर कोविड जो चेंजेस आए ना, काफ़ी आए. पीपल वांट टू स्पेंड, पीपल वांट टू गो आउट. Yes, sir. वो The desserts are really very. सिंपली मेल्ट इन माउथ. रियली गुड. हाँ, और बहुत अच्छा एक सटल फ्लेवर है कॉफ़ी का. इट्स नॉट ओवर पावरिंग. थैंक यू. ट्राई दिस टू. तो आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत आते हैं ना, स्कूल के बच्चे जो हाँ, यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में यहाँ पढ़ते है, हैं, जो उनकी काफ़ी आउटिंग होती है तो वो लोग आते काफ़ी हैं. आते हैं. मसूरी का जो मैंने देखा डेजर्ट का या स्वीट्स, हमारा बेकरी का जो है, इट इज़ रियली एलिवेटेड. आप किसी भी और उत्तराखंड के ऐसे उसमें जाएंगे शहर में तो Very नहीं right. था. बिकॉज ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बसाया गया था, एंड दे वर रियली फॉन्ड ऑफ गुड फूड, एंड स्पेशली दे गॉट फ्रॉम देयर, दे यूज टू गेट देयर शेफ्स जो और सिखाते थे. आज भी कुछ मसूरी में शेफ्स हैं जो स्पेशली बेकरी का सामान बनाते हैं, एंड दैट टाइम दे यूज टू सेल ऑन ट्रंक्स. दे यूज टू मेक कुकीज, सूफ्लेस, Cookies, yeah. Cookies. the big cookies, and Yeah. locals of Mussoorie used to wait for the timing कि ये आएंगे और कुकी लेके आएंगे and we'll buy, and they were very reasonable. Very, very. 20 एक आना दो एक आना दो आना. And अभी भी Touchwood Chick Chocolate is a shop which is maintaining that taste of desserts. Legacy. Yes, and they're famous Chick Choc. So I would say, like in India only, they started the trend of hot brownie with the ice cream.
So that's the name also, Chick Chok it's called. You come for a meal, you try that as a dessert. वो थोड़ा बड़ा Yes. होता है. It's a huge big thing with hot brownie, ice creams and different chocolates. White chocolate, choco chips. So that's long time back जब इंडिया में ये सब ट्रेंड था ही नहीं, तब से they are carrying this यहाँ पे forward. इतने अच्छे बेकरी प्रोडक्ट्स क्यों मिलते हैं? सर मैंने जो अपने नोटिस किया है, देहरादून के पानी में ही कुछ है और यहाँ के कुछ वेदर और कुछ यहाँ पानी का फ्लेवर है. जैसे कहते हैं पंजाब के खाने में पानी का बहुत रोल है, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है पानी का कुछ रोल है कि यहाँ का वेदर ऑल्सो एंड द टेम्परेचर में भी it maintains like Mussoorie Dehradun bakery is really famous. कहते हैं इसको बेकरी टाउन कहते हैं देहरादून को। Yes, sir, it's Ah, famous. bakery. बेकरी टाउन। Very famous bakeries in Dehradun. This is another legacy from the British. हाँ, स्टिकी। That's the sign of good peanut butter. कैसा लगा? बहुत शानदार। चलिए सर, थैंक यू सो मच। So nice, Mr. Sapra. Nice to really meet you. सेम है सर, थैंक यू। And I hope you can take some. Thanks a lot. लेगेसी Thank you very much. और जो लोग यहाँ पे आते हैं वो आपका But I hope you can take time off to please come and have a meal. सर, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं तब आएगा असली मजा. सर प्लीज़ अपने कैफ़े के बारे में बताइए हमें। We started off in 2013 and बेसिक मोटिव यही था कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी पहले, बट वही वंस यू सॉर्ट ऑफ ग्रो लिटिल बिट ओल्डर तो थोड़ा फैमिली का प्रेशर एंड एवरीथिंग, तो मेरे लिए वही था कि मैं कैसे उस चीज़ को अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी से लाऊं. तो फॉर मी मसूरी वाज लाइक इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ ट्रैवलर्स फ्रॉम एवरीवेयर. तो मेरे लिए ये था कि एक जगह ऐसी बने जहाँ पे विच इज़ लाइक कम्प्लीटली लोकल एंड विच वर्क्स टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट. बेसिकली वो हमारा कोर वैल्यू है. And I can meet a lot of people and sort of share our stories. तो आप रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं मसूरी. मसूरी से ही हैं? कितना समय हो गया आपको इस कैफ़े को? अब तो कितना हो गया, अराउंड 13 years. अच्छा, हमारा एक सवाल था. हाँ जी. बाय द वे आपके कैफ़े का नाम कैफ़े बाय द वे क्यों हुआ? सर वही जैसे मैंने आपको बोला ना कि लोगों से जैसे मैं मिल सकूं, तो बाय द वे इज़ लाइक अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. अच्छा. जैसे बाय द वे तुमने सुना ये हुआ, या फिर बाय द वे आई बीन हियर एंड ऑल दैट स्टफ. तो दैट्स द रीज़न दैट आई नेम्ड इट बाय द वे. बाय द वे मुझे मीठा बहुत पसंद है. बाय द वे आज हम मसूरी में कैफे बाय द वे बैठे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बाय द वे आज मौसम भी अच्छा है. ये मतलब विंटर्स में वार्म हॉट चॉकलेट बेस्ट कॉम्बो है. इसमें क्या क्या डालते हैं आप? सर इसमें हम दो टाइप के कोकोज यूज़ करते हैं. एक तो प्योर होता है विच हैज़ नो शुगर इन इट, एंड वन वी यूज इज दैट इज़ स्वीटेंड कोको. हाँ जी, एंड मिल्क. तो ये कहाँ से सोर्स करते हैं? सर द प्योर कोको दैट वी यूज़ दैट इज़ मलेशियन. सो दैट इज़ वैन ह्यूटन जो कंपनी का आता है. एंड जो स्वीट चॉकलेट है हम उसको यहीं पर ही उसी कोको को भी स्वीटन इट डाउन. So sir, let us have this buras and tulsi infusion, which is a local flower here. और इसका ये आपके यहाँ पे मसूरी के पास में कोई जगह है बुरांश खंडा? हाँ जी, हाँ, जो बुरांश धनौल्टी खंडा. के रास्ते दो, में आता हाँ है. उसके पास. If you need, we can put some honey. आई थिंक स्वीट ऑन इट्स ओन. अच्छा, एक स्वीट और टैंगी फ्लेवर है इसका. Naturally sweet. Sit. वाह. It's really nice. आप हमें बता रहे थे अपने डॉग्स के बारे में. डॉग्स हम रेस्क्यू भी करते हैं एंड हम उनको न्यूटर भी कराते हैं. सो वी हैव अराउंड 10 डॉग्स इन द कैफे राइट नाउ, जिनका 2 meals per day इज़ ऑन अस. बाकी वी प्रोवाइड सम सेफ एनवायरनमेंट. तो आई थिंक हमने बाहर बालकनी में देखा ही होगा 5-6 डॉग्स हैं. तो आपके जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब वुमेन स्टाफ? हाँ जी, सिर्फ women staff है. ऑल आर फ्रॉम मसूरी who have been married into मसूरी. तो we work majorly with women only and teaching them how to make different things and
तो उनके भी अच्छा है. नहीं, why not? And I think the oldest one is Neelam. Neelam, हाँ, she joined as a team member in 2013. Now she is the manager. So She manages the since place. last 13 years हाँ she जी, is with you. she's the backbone of the cafe, I think. Neelam. हेलो How सर. are you, sir? Welcome, sir. थैंक यू सर. Welcome. थैंक यू. थैंक यू. So nice to see you here. थैंक यू. तो ये आपका मसूरी का ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट है. That is right, sir. This is the oldest restaurant of Missouri, now into its 76th year of operations. हाँ. It was started by my grandfather. हाँ. So I am the proud third generation managing the restaurant now. I have the privilege to do this, sitting in a place like Missouri. आपको कहते हैं ना पकी पकाई दाल मिली हुई है हमें, जी, हम जी. बैठे बैठे वो खा रहे हैं जी. क्या बात. क्या बात. नमस्कार. That's my father, by the way. नमस्ते. नमस्ते. He's the one behind all the recipes and अच्छा. the taste behind the restaurant. These are the landmark buildings of Missouri properties. George Everest came up in 1832. Lal Bahadur Shastri Academy came up in 1959. Ganil in 1970, Company Garden in 1910, and Neelam Restaurant came up in 1949. अच्छा. ये भी एक आइकॉनिक, timeline. मतलब ये आइकॉनिक जगह है ये भी. हाँ? मसूरी की. क्या ये बात. 70 years जब पूरे हुए थे, तो 70 years की वॉल बनाई थी हमने. क्या बात. This is my younger brother. He was an international skater. He represented the country in 3 internationals. And the young man standing here right in the center, if I'm a bargain, is him. अच्छा. This is when he joined business. Good about 52 years wow. back. तब लोग रहने वाले कहाँ गए हैं? पीछे हम अमृतसर के हैं. अमृतसर के. डिस्ट्रिक्ट अमृतसर. We belong to that particular village, Raga Sansi, जहाँ अमृतसर का एयरपोर्ट है. तो यहाँ कैसे मसूरी? हमारे फादर आ गए थे 49 में. अच्छा. We just started off with a small counter of chola bhatura, tikkis, samosas, and in the very next year we launched the food part also, and keep on extending. बहुत पुराने सर 76 years हो गए, and we are on the same place. We have not moved out. Of course, the place has been renovated from time to time as the time demands. Otherwise, we have been in this property for the last 76 years. Raj Kapoor inaugurated one of our Bombay branches. We also participated in some movies also. So this is a Thodi nice picture piece bhi of bani. history from Neelam. As in, there was a production house by the name of Neelam Productions. So we were into movie productions during the time of my grandfather. So my grandfather and his brothers, they started this production house. What you're seeing here, this is the first movie produced of Neelam Productions. 1958 this was released. And these photographs are dated 1957, 1958 of the shooting of this movie. And this was the last movie, Yam Lajat. So although this movie did very well, but unfortunately my grandfather passed away, the family just took ways and the production house had to be closed there. But this is a piece of history for us, so we put it on the wall. ये ब्रेन बना रहे हैं. ब्रेन. ये brain है. ब्रेन मसाला. गोट ब्रेन. We make this from kacha brain, not boiling. अच्छा. We don't boil it. We cook it in the gravy. I make with my own hands. No staff is involved in making this masala. I make this masala every month or so, in huge quantity, and we put it over here, and then we keep on using. कोई खुशबू लो इसकी. इट्स एन ऑनर कि आपने हमारे लिए ये डिशेस बनाई हैं खुद से. हाँ. और बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी को जान के. बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी जो जर्नी रही है उसकी लेगेसी को सुन के. और अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं सर के हाथ का बना हुआ खाना, जिसमें ये है दाल बुखारा, पिंडी चना, चिकन करी, अजवाइन पराठा, तंदूरी रोटी, ब्रेन मसाला, गार्लिक नान, और ये तो मतलब हर पंजाबी रेस्टोरेंट की जान है, लच्छा प्याज, और ये अपनी हरी चटनी जो होती है धनिया पुदीने वाली, वो. तो शुरू करते हैं. You won't believe me, I'm a vegetarian. मतलब शुरू से. And I enjoy making non-vegetarian.
दिस इज अ पिंडी मसाला पिंडी मसाला, पिंडी चने का मसाला। अच्छा ये बताइए, आप हमेशा टाइम में रहते हैं? Sir, more than 300 days in a year. अच्छा, More than 300 days in a year. I'm on my tie. क्या बात। मसूरी से बाहर जाते हैं गर्मी में कभी, तब टाई निकलती है। I love my ties. ये पिंडी चना बहुत शानदार है, मतलब ड्राई प्रिपरेशन और जो अच्छे से मसाले में लिपटा हुआ है। इसके साथ सर्व करते हैं स्टफ्ड पनीर कुलचा। अच्छा, Am I right? एक पनीर कुलचा लगवाता हूँ। लगवा दीजिए, लगवा इनका दीजिए। बहुत फेमस है वो। भूख लग गई। So that is the combination with this. I चलिए। remember because we come for parties and family. Ladies come here a lot. ग्रीन मसाला खाएंगे ना, आप सब भूल जाएंगे। ये हम ऐसी ग्रीन मसाला? चीज़ें यहाँ खा रहे हैं जो दिल्ली में मिलती है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं मिलती। मतलब बहुत ही उम्दा भी अंडर स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा है यार ये। बहुत ही उम्दा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब प्रॉपर पंजाबी स्टाइल ग्रीन मसाला है, जो तवे पे भुनाई होती है अच्छे से मसालों के साथ में, वैसा है। बहुत शानदार है, पूरा जिंजर गार्लिक का फ्लेवर है। पंजाब में हाथ से मसाले बनाते हैं, कुटे मसाले, उसका फ्लेवर है, और एक लेगेसी का फ्लेवर है, और एक नॉस्टैल्जिया का फ्लेवर है। अब चिकन का ही टेस्ट करते हैं। चिकन भी बिल्कुल वेल कुक और अच्छे से ग्रेवी में लगाया हूँ। टिपिकल पंजाबी स्टाइल चिकन करी है। ये दाल मखनी बहुत अच्छी है, मतलब मुझे इस तरह की दाल मतलब पसंद आती है, बोला ना ज़्यादा क्रीम मक्खन वाली नहीं। It is not very with very lot of butter and cream. It has that original. We use very minimum cream. While cooking this dal, we add on some milk to it. अच्छा, Otherwise, we don't. तभी क्रीमी We're not very fond of using cream. और मतलब ये ना जैसे तो दाल मखनी का मखमली टेक्सचर होना चाहिए, वो है। आपके रेस्टोरेंट का नाम नीलम कैसे हुआ? I wouldn't know this. This is a very commonly asked question. In fact, बहुत लोग आके पूछते हैं कि कैसे रखा, कैसे रखा. But there's no one in the family by the name of Neelam. तो फादर ने रखा, उनको पता होगा ज़्यादा. But I think mainly it must be related to the Neelam stone or something. Never asked my father. Never asked my dad. उससे हिम्मत नहीं होती थी. तो मतलब कहते हैं ना ट्रू पंजाबी हॉस्पिटैलिटी, वो यहाँ का एक्सपीरियंस किया है। बहुत मज़ा आया खाना खाने में, मतलब पंजाब का स्वाद मसूरी में मिला। अब हम एंड कर रहे हैं फ्रूट क्रीम के साथ में, और इसमें अलग अलग फ्रूट्स हैं, क्रीम है, और ये सर जेली है। नहीं, this is some jam. जैम, अच्छा। Strawberry jam. ओह, We use only fresh fruits for this fruit cream, no tinned fruits at all. I'm grateful to Smriti ji for bringing you all over here today evening, and we have had a very good conversation and very good meeting. And one thing I would like to tell you, that as I know Smriti's family much before her wedding also. Her father was a good friend of mine in Roorkee. Her Tauji was also a very good friend of mine. So family relations जो है हमारे मसूरी वैसे भी एक फैमिली है, स्मॉल फैमिली। यहाँ के कहीं भी जाएंगे, किसी के साथ भी बैठेंगे, आप 1-2 घंटे के बाद उनसे ऐसे रिलेशन बन जाएंगे जैसे अपनी फैमिली के हैं। अब मुझे लगता है ना क्या कि ये हर जगह पहाड़ी इलाकों में है। आप कहीं जाएं, मतलब मसूरी भी है, आप शिमला जाएं, आप नैनीताल जाएं, आप मनाली जाएं, हर जगह ऐसे ही एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी। सारी ठंडी जगह पे ना बहुत वार्मिंग इन्वायरमेंट है। Yes. वार्मथ है। और जितनी बड़ी सिटीज हैं वो उतने ड्राई है। हाँ, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। दिल से आपसे मिलके एक खुशी सी है, मतलब आई डोंट नो, यू कैरी दोस वेरी पॉजिटिव वाइब्स, दैट कूलनेस, दैट कामनेस, that is something special. I must compliment you for that, sir, and thank you so much for coming and taking out the time. थैंक यू। आप ये बताइए कि आप पीछे रहने वाले कहाँ से हैं? हम लोग रहने वाले, मेरी शादी यहाँ हुई है मसूरी में, मायका मेरा वहाँ है रानी पुखरी ऋषिकेश के पास। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी देवी।
और कितना टाइम हो गया आपके इस ईटरी को? ये तो मेरी बेटी ने लास्ट ईयर ही खोला था, मई में। और वैसे तो हमारा अपना है रेस्टोरेंट मोगैम्बो करके। 40 इयर्स तो मेरी शादी को हो गए हैं मलिंगार में, लंडौर में। हाँ जी। वहाँ और किस तरह का खाना मिलता है, क्या मिलता है? ये हमारा जो अपना है टिबेटन फूड। हाँ जी। और ये पापा लाफिंग के पीछे क्या कहानी है इसका? पापा लाफिंग वो है मेरी बेटी। हाँ हाँ। वो अच्छा खासा जॉब कर रही थी, तो उसको लगा कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे अपना बिजनेस करना है। वो HR डायरेक्टर 30 से पड़ी हुई है बॉम्बे। अच्छा। हाँ जी। हाँ, और पब्लिक स्कूल से यहाँ इंटर किया हुआ है किस मसूरी के। किस देवनार से? हाँ जी। किस 30 मुंबई? से 30। हाँ, हाँ जी, अरे हाँ वाह। जी। चैम्बूर में जो है। जी 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 हाँ। तो ये पापा नाम? ये इसकी अपनी पसंद है, पापा लाफिंग। अच्छा। पापा के नाम से लाफिंग करते हैं। हाँ जी। तो लाफिंग के अलावा और क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? सिड्डू है, मोमोज हैं, नूडल्स भी हैं, तरह तरह का है। आपके मसूरी में 2 आउटलेट्स हैं। नहीं, मसूरी में अभी इसने ये भी खोला है इस साल। हाँ। और लास्ट ईयर इसका वो है हाँ। माल पैलेस वाला। हाँ। और अभी इसने सिस्टर बाजार में भी खोला है। 3 आउटलेट हैं। हाँ जी। और अपना तो हमारा है ही है। हाँ। फिर बगल में एक और इसने हमारा छोटी सी शॉप और भी है। वो तो हमारा रेस्टोरेंट है, मोगैम्बो करके, बहुत फेमस है। बगल में भी एक छोटा सा खोल दिया है। तो लाफिंग की 4-5 हो गए मानी की। अच्छा, तो बिल्कुल एकदम जो ट्रेडिशनल स्टाइल में लाफिंग बनती है, हाँ जी। उसमें तो अंदर में ग्लूटेन डालते हैं हाँ और जी, सोया ब्रेड- चंक्स। हाँ ये सब डाल के बनाते हाँ हैं। जी। वाई हाँ हाँ। पीनट्स, चिकन जैसे लोग। मैंने बहुत खाया दिल्ली के मजनू के टीला में, हाँ जी। बहुत मिलता है लाफिंग वहाँ पे। यहाँ पे बहुत से कस्टमर आते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमने एमटी में खाया है, लेकिन यहाँ के जैसे टेस्ट नहीं है। अच्छा। अब मैं ये तारीफ नहीं कर रही हूँ भाई, वो कस्टमर बोलते मैं तो ये कहूँगा कि आप मसूरी में कोई भी चीज़ खाएं, हाँ जी। एक बॉयल अंडा यहाँ से खा लें, वो अच्छा लगेगा खाने हाँ में। जी। हाँ जी। उसकी क्या वजह समझी आप लोगों ने? नहीं, मौसम क्लाइमेट का। क्लाइमेट का मतलब यहाँ पे हर चीज़ अच्छी लगती है खाने हाँ में। जी। हाँ जी। ये शीट किससे बनती है? मैदे से? मैदे से बनती है। फुल ऑन स्पाइसी, हाँ टेस्टी है। टेस्टी है, तीखा है और उमामी फ्लेवर भी पूरा है। वाह। आपकी स्वीट शॉप 1930 से है? 1930 से हैं। आप लोग पीछे रहने वाले कहाँ के हैं? हम यहीं के हैं वैसे। मसूरी हम से? मसूरी से पहले हम वैसे श्रीनगर के आगे से हैं, बड़ियारगढ़ कहते हैं। वो उत्तराखंड के ही हैं। उत्तराखंड के ही। अच्छा। तब क्या बंगाली मिठाइयाँ मिलती हैं? उस टाइम से जो ग्रैंड पेरेंट्स है जिन्होंने स्टार्ट किया था, वहाँ से उन्होंने करा था कि हम बंगाली स्वीट शुरू करेंगे। ब्रिटिशर्स को पसंद थी उस टाइम बंगाली, तो वो तब से शुरू कर रहे हैं। तो बंगाली मिठाइयाँ भी है और अपना उत्तराखंड की मिठाइयाँ भी हैं? दोनों हैं। हाँ जी। हाँ जी। जैसे ये बाल बाल मिठाई मिठाई है, चॉकलेट बर्फ़ी है, सिंगोरी भी रखते हैं हम। ये काफ़ी कम लोग बनाते हैं हम, तो ये भी रखते हैं। और इसके अलावा? हाँ जी। इसके अलावा तो यहाँ पे हमारी बेसन की बर्फ़ी स्पेशलिटी है, मिल्क केक है, लौकी नारियल अगर कम मीठे में चाहिए वो स्पेशलिटी है, रसमलाई है हमारी स्पेशलिटी पहले से ही। ये आपके ये हाँ जी, ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने स्टार्ट किया क्या था। नाम था इनका? इनके नाम से दुकान है। अच्छा। ये मेरे फादर के ताऊजी बोल दीजिए। अच्छा। इंदर दत्त गोदियाल जी, ये मेरे ग्रैंडफादर वाचस्पति गोदियाल जी। बाकी ये सारी वर्ल्ड वॉर 2 की ओरिजिनल कॉपीज़ हैं। ये कैलेंडर्स हैं 1942 के ओरिजिनल। ये सारी ओरिजिनल है, तब से पापा लोगों ने सब वो रखा है। ये लाइब्रेरी चौक ऐसे होता था, 1948 का है, जहाँ पे कार्निवल लगा हुआ ना। जी जी। उस साइड से बैरियर के पास आप आए होंगे, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई होगी। ये ऐसे होता था मैंने। सो दिस इज द स्केच अराउंड 1948 का। 100 साल पुराना है। और ये जो क्लॉक लगी है आपके पीछे, ये भी 100 साल पुराना। नहीं अच्छा है, मतलब ऐसे ही पहले जब 1930s में शॉप थी, थोड़ी सी छोटी हुआ करती थी ऐसे बोलते हैं, बस बाकी तो बट काउंटर ऐसे ही था। ये वाला काउंटर तो यही था। पहले फादर लोग बताते हैं कि काम दुकानों में नहीं होता था, तो पहले क्या करते थे, छोटा इसी का छोटा वर्जन कर लीजिए, इसका छोटा वर्जन होता था, सिर में रख के किसी को जैसे डिलीवरी टाइप होता था, वो डोर टू डोर जाते थे। दादाजी लोग तो ये बैठते थे, पर वो डोर टू डोर जाते थे तो सबको डिलीवर करा करते थे। वो काउंटर जो है वो जब हमारे फादर एंड ताऊ जी है ना पीछे, तो क्या कहते हैं उन्होंने जो स्टार्ट करी थी, वो क्या बताते हैं कि क्या कहते हैं अंग्रेज़ों का यहाँ जो है क्रॉकरी रखने का था वो, तो वहाँ से जो हमने मतलब परचेज किया था उसको, मतलब उसको 100 साल से ज़्यादा। तो बाद में इसको अपना स्वीट्स काउंटर बना दिया। स्वीट काउंटर बना दिया। हाँ जी। अभी अच्छा, अभी तक आपने इसको रखा हुआ है संजो के? जी जी हाँ। अच्छा, और मेरे ताऊ जी जो है एक सरदार जी थे, उनके साथ जब यहाँ आए थे पहले मसूरी से, गढ़वाल के हम, तो क्या कहते हैं उनका जो है फ्रेंड बने सरदार जी, तो वो जो है
बंगाल भी जाते थे। उनके साथ बंगाल से जो है कारीगर लाए, 1930 में स्टार्ट करा। तभी जो ये बनाते हैं मिठाइयाँ बंगाली भी बनाते हैं। बंगाली भी है और क्या कहते हैं वो देहरादून में है अभी। हाँ, वो हमारे कजन है वहाँ, बंगाली स्वीट्स देहरादून भी है। घंटा घर पे जो है, जी जी जी, मैं वहाँ गया हूँ। हाँ हाँ, हाँ, बाग मिठाई मैंने बहुत खाई है वहाँ की। अच्छा अच्छा, तो आपके रिलेटिव हैं? जी जी जी, कजन है मेरे पिता, वो दोनों कजन थे खास, फादर और क्या कहते हैं स्टार्टिंग यहाँ से, हाँ, फिर देहरादून जो है बाद में। आपने जो है हर जगह की भी रसमलाई खाएगी, वो डिफरेंट है हमारी रसमलाई, बहुत उम्दा है। जो रसमलाई में अंदर में छेना है, जी जी, मेल्ट इन माउथ, मुंह में जाएगा घुल जाएगा, मतलब दांतों की आवश्यकता नहीं है। ये सिंगोड़ी है। सिंगोड़ी, इसमें मेन ये है कि पत्ता है ना जो, हाँ, जो पत्ते का फ्लेवर आएगा आपको। पत्ते को जो हम तो जो है इस पत्ते को इतना अच्छा मानते हैं कि क्या कहते हैं शादियों में भी जो है इसको जो है दाल जो है इसको चाट के खाते थे। इसको भी अभी यदि सिंगोरी खाऊंगा मैं तो जरूर उसमें जो है थोड़ा सा जो है चाटूंगा। तो पत्ते का फ्लेवर आता है ना, जो इस पत्ते को जो है यहाँ शुभ मानते हैं, समझ लो, तो इसका प्रसाद चढ़ाने के लिए, ऐसा करने के लिए। तो ये गर्म किया आपने? हल्का सा गर्म किया, इसमें जो है फिर पत्ते का भी और वो आता है। तो ये कलाकंद है? हाँ, कलाकंद टाइप का, लेकिन ज़्यादा थोड़ा भुना हुआ। अच्छा। ये मिठाई आपकी टीरी की है? टीरी और अल्मोड़ा में उनकी है। हाँ जी, टीरी में भी बहुत फेमस थी। अल्मोड़ा वाले बोलते हैं वो उनकी है, टीरी वाले बोलते हैं वो ये इनकी है। हाँ हाँ, लेकिन बाल मिठाई और वो जो है वो अल्मोड़ा से। ये कहीं ऐसा ना मेल्टेड बर्फी। जी जी जी, मतलब बर्फी को मेल्ट कर दीजिए, हाँ, और पत्ते का फ्लेवर, पत्ते का फ्लेवर, ये है सिंगोड़ी। बहुत अच्छी बुनी, मतलब आप हाँ, एकदम बहुत अच्छे से वो ये जो अल्मोड़ा वाले बनाते हैं वो भूनते कम है। वो लाइट येलो हाँ, है। आपकी मैंने हमेशा से खाई है, वो परफेक्ट बुना। बहुत शानदार है। मतलब मैं उनको बता रहा था कि सिंगोरी के नाम पे हर जगह पे क्या मिलता है, बर्फी स्टफ्ड, कच्ची बर्फी। ये है असली सिंगोरी। इसमें क्या होता है, सिंगोरी क्या बनाते हैं, वो जो मावा आया, हाँ, खरीदा आपने, उसको करा, और क्या इसमें जो है यदि मावा भी डालो, इसमें जो मावा डालना है तो कम से कम जो है उसमें उतना ही मावा, उतना ही बनावा अपने हाथ का मावा, तब मिक्स करके बनाइए, तब बनता है इसका। हाँ, मतलब आप दूध में जो है उसको जो है करिए, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही उम्दा है। ये बेसन की जो बर्फी है, ये भी प्रॉपर पहाड़ी मिठाई है। मैं कई जगहों पे गया हूँ, आपका इस तरफ हिमाचल की तरफ भी गया हूँ, वहाँ भी कई जगहों पे आपको बेसन की बर्फी मिलेगी। एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी दिन चल जाती है, लेन देन में काम आ जाती है, और खाने में स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। क्योंकि बेसन ऐसे ही इसमें अच्छा प्रोटीन होता है, और चीनी की मात्रा है, चीनी आप कम कर लें जैसा भी है। मसूरी में दिल्ली स्वीट हाउस लेके आए। बिल्कुल, दिल्ली स्वीट शॉप। ये दिल्ली स्वीट शॉप, आप दिल्ली से आए हो। हाँ। ये मसूरी की दुकान है, बट ये सबसे फेमस दुकान है जहाँ समोसे, चाय और सब चीज़ें मिलती हैं। और यही एक ऐसी शॉप है जहाँ से मसूरी की सारी नेतागिरी चलती है। अच्छा। सही बोल रही हूँ भैया? तो यहाँ पे सब बड़े बड़े जो भी मसूरी में नेता बनता है वो यहीं आके बैठ के चाय पीता है। अच्छा, पहले तो अपना नाम बताइए। रकम सिंह गुनसोला। तो आपकी दुकान कब से है यहाँ पे, कितने साल? सर ये मेरे ख्याल से 60-65 तो ही। और लोग पीछे रहने वाले कहाँ के हैं? टीरी गढ़वाल। टीरी गढ़वाल। इस शॉप का नाम दिल्ली स्वीट शॉप क्यों रखा? ये ऐसे जी हमारे मामा जी थे, हाँ, ये पहले दिल्ली में काम करते थे, अच्छा, फिर यहाँ आके उन्होंने दिल्ली से शॉप खोल दी। चलिए क्या बात है, दिल्ली को ये शॉप डेडिकेट कर दी है। तो प्रीति जी बता रही हैं कि पूरे मसूरी की पॉलिटिक्स यही चलती है। पॉलिटिक्स यही है, लेबर भी यही है, आपको जो चाहिए यही मिलेगा, आवश्यक सेवा, पत्रकार भी सब यही मिलेगा। तो ये अपना अड्डा बनाते हैं, अपना बैठ के मिठाइयाँ खाई, चाय पी, समोसे खाए, और अपना गुफ्तगू, अपनी बातचीत की, रणनीति तैयार की। हाँ, जो भी हो तो वो जाने, हमें इससे मतलब नहीं है। आप सुनते नहीं हैं? इतना टाइम थोड़ी हम पे, देखो दीवारों के भी कान होते हैं। नहीं वो अलग चीज़ है। अब हमारे हम तो देखो कितने बिजी हैं।
पूरा चाशी में डूबा हुआ, बिल्कुल शाइन करता हुआ, गर्मा गर्म गुलाब गुलाब जामुन। जामुन। और ये बात आप गौर करिएगा, किसी भी हिल स्टेशन में जाइए, वहाँ गुलाब जामुन खाइए, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। एक शिमला में बहुत पुरानी दुकान होती थी, अब बंद हो गई, नाम याद नहीं आ रहा। उनके गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते थे खाने में, कहीं भी चले जाएँ। वेरी डिफरेंट ना, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। बहुत बढ़िया। वो असल में मौसम जो होता है ना, हाँ जी, इनका इन मिठाइयों का फ्लेवर बढ़ाता है। और टेस्ट बढ़ा देता है। वाह। मसूरी में नागा कुजीन भी मिलता है, और नागा कुजीन में हमने मंगवाया है स्मोक पोर्क राइस, और यहाँ पे मेज़े प्लेटर है, फलाफल, पिटा, सैलेड, बाबा गनूश, hummus. The quality of pork is superb, very well cooked, and perfect balance of fat and meat, and mildly spiced. Simply smoky aroma and flavor, full on fatty pork ribs. फुल ऑन जूसी है, और स्वीटनेस भी है बारबेक्यू सॉस का। और फिर उसका जितना बढ़िया नागा कुजीन मसूरी में मिलेगा। मटन मोमो ना जल्दी मिलते नहीं है, देहरादून मसूरी में मिलते हैं ज़्यादा, हर जगह पे चिकन मोमो मिल रहा है। बहुत जूसी और हाँ, फुल ऑन जूसी है। ऑरेंज कॉन्ट्रो केक, और कॉन्ट्रो क्या है, वो लिक्योर है, वो इस केक में, और अच्छा सा इसका एक क्रस्ट है, साथ में ऊपर में ऑरेंज, वार्म है, मॉइस्ट है, सॉफ्ट है, डेलिकेट है। इट्स लाइक ऑरेंज मार्मलेड। Belly full of fun. That is our tagline. Belly full of fun. This logo was designed by a teacher in one of the schools in Mussoorie में Woodstock school में थे, उन्होंने करा था। मुझे लग रहा है ऐसे हर्षित बैठा हुआ है। हाँ, तो ये we had the monk sitting on the barrel of this thing, and this is our logo. तो यहाँ पे फैशन शोज भी होते थे, और डांस फ्लोर भी था, Everything. लाइव म्यूजिक। I was saying that we would close the place at 4 o'clock in the morning. Summers में मसूरी में ये 3, 4, 5 रेस्टोरेंट्स होते थे इन द गुड ओल्ड डेज। अब उनमें से सिर्फ टैवन ही बचा है, जिनमें लाइव म्यूजिक रोज होता था, मिस मसूरी कॉन्टेस्ट होते थे, डांसिंग क्वींस होती थी, एवरी अदर डे राइट थ्रू द समर समथिंग वाज हैपनिंग इन मसूरी। इट वाज सच अ वाइब्रेंट टाउन। सवाई होटल अपनी जगह पे था, विच वाज लाइक अ वेरी एलिटिस्ट प्लेस। सो हैकमन्स में कैबरेज होते थे मसूरी में। तो मैं जैसे आपको दिन में बता रहा था, मसूरी वाज अ प्लेस प्योरली फॉर फन एंड फ्रॉलिक। जिसने छुट्टी मनानी है, मस्ती मारनी है, वो मसूरी आता था। और मॉल रोड पे निकल जाओ, इट इज लाइक अ फैशन परेड, एंड देयर वर रेस्टोरेंट्स प्लेइंग लाइव म्यूजिक, गुड अल्कोहल, गुड फूड, एंड हुज हू ऑफ द कंट्री। उस टाइम यूरोप जाने का तो कॉन्सेप्ट था नहीं। सो कमिंग टू मसूरी meant that you're going to what in today's day and age is going to Europe or wherever. काफी इंटरेस्टिंग मेन्यू है, मतलब जी, and it's a very varied kind of a, yeah. मसामान लैम्ब करी। जी। थाईलैंड में खाया था हमने शायद। थाईलैंड में खाया होगा। थाईलैंड में खाया था हमने, एक मार्केट में जाके कहीं खाया था। So these things, see, a lot of our menus also designed because खपली आटा का रोटी। हाँ, खपली आटे की रोटी। हमारे ना मसूरी में जितने स्कूल्स हैं, उनके जो बोर्डिंग स्कूल्स के बच्चे हैं, they are from the world over. They are also a big part of our business, not just our restaurant but मसूरी पर से। वो आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए, उनकी जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं, तो वो सब हमने कोशिश करी है डालने की। ब्लैक पेपर, क्लोव्स, ग्रीन कार्डमम, स्टार एनीस, सिनेमन।
तो आप बोर नहीं होते अपने रेस्टोरेंट में खाने से? या कुछ खास बात? बोर तो कभी नहीं होता, कभी भी नहीं आता। हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम लोगों का कभी 15 दिन में, महीने में कहीं और खाना खाने का मन करता है, हम चले जाते हैं बड़े शौक से, और फिर घूम फिर के कहते हैं यार जो टैवन का खाना है ना, तो टैवन का ही है। मुझे मतलब बटर चिकन है ना, दिल्ली वालों को टक्कर दे रहे हैं हम दिल्ली वालों टक्कर देते हैं, 100% टक्कर देते हैं। वाह, भुना गोश्त। बटर चिकन के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ कि कैसा बटर चिकन होना चाहिए। एक सेट पैरामीटर्स हैं, तो ठीक है, पास हो गए ना? बिल्कुल सारे पैरामीटर्स पे पास हो गया। बट सर एक बात तो है कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। बस थैंक यू। अब डॉक्यूमेंट्री इतनी अच्छी मतलब मसूरी की कहानियाँ सुनी हमने यहाँ बैठ के, इतना बढ़िया खाना खाया, इतने अच्छे ड्रिंक्स पी, और क्या चाहिए? गुड फूड, गुड फ्रेंड्स, गुड म्यूजिक। and we'd just like to say it's always sunny in Mussoorie. इट्स ऑलवेज सनी इन मसूरी। ओह थैंक यू। आप कंटेंट फील करें तो आपको ऐसा करना चाहिए। हाँ, कंटेंट एंड हैप्पी। एंड हैप्पी। आप भी